Good morning everyone. Today we will do lesson 7 in English workbook of 8th class, A visit to Cambridge. Comprehension. A. Read the following passage and answer the question that follow. Think big, think fast and think ahead. This was the formula behind the success of Dhirubhai Ambani. Dhirubhai Ambani, the son of a school teacher from a remote village in rural Gujarat, was born on 20th December 1932. As a small boy, he used to sell snacks to pilgrims outside a temple in his native village. But he had big dreams. Dhirubhai, as a teenager, moved to Aden to make his future. He started working as an attendant in a petrol station. Then he took up a clerical position in an oil company. With the money he earned there, he started Reliance Commercial Corporation in Mumbai. Then he opened his first textile mill in Naroda in 1966. He made Vimal his textile brand, which flourished and still remains a household name in India. Word meaning. Remote, दूर. Rural, ग्रामीण. Pilgrims, तीर्थयात्री, तीर्थस्थान. टीनेजर, छोटी आयु, जब किशोरावस्था. अटेंडेंट, सहायक. कॉरपोरेशन, निगम. कॉमर्शियल, वाणिज्यिक. क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट वाज धीरूभाई Question first. What was Dhirubhai Ambani's formula for success? इसी में से जैसे हमने ले रखा है, think big, think fast and think ahead. Second, Dhirubhai Ambani was the son of a school teacher. Third, he was born on, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, इसी में से देख के लिख देते हैं, 20th December 1932. Fourth, he sold, जो बेचता था, snacks to pilgrims outside a temple in his childhood. Fifth, as a teenager, he worked as an attendant in a petrol station. Sixth, he opened his first textile mill in Naroda and made Vimal his textile brand. Vimal का आपने नाम सुना ही होगा. Seventh, find words in the passage that are opposite in meaning to the following and use them in your own sentences. A. Failure. फेलियर का अपोजिट सक्सेस. कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर ऑफ हिज सक्सेस. बी. स्पेंट का अर्नड. यू अर्नड दिस जो, ये एक एग्जांपल है. वर्किंग विद लैंग्वेज. वोकेबलरी. ए. We convey our good wishes to others when they start some new work, go on a journey, take exams, fall ill, etc. Here are some examples. हम जो अच्छी विशेज हैं वो देते हैं, चाहे कोई किसी जर्नी पे जा रहा हो या किसी का एग्ज़ाम हो, बीमार पड़ जाए या अन्य चीज़ें हों, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू, गुड लक, हैव ए सेफ नाइस pleasant journey, best of journey, I hope all goes well, get well soon, may luck always shine on you. Match the wishes given in the box with the occasions, events mentioned below. One has been done for you. जो नीचे बॉक्स में जो विशेष दी गई हैं, उनको जो नीचे ओकेजन, इवेंट्स दिए गए हैं जिनके बारे में वर्णन किया गया है, उनके साथ मैच करें. एक आपके लिए किया हुआ है. तो इनमें जैसे बहुत कम डिफरेंस है, ये डाउट हो जाता है कई बार कि ये आएगा, हल्का सा डिफरेंस है होता है. फर्स्ट,
आई एम गोइंग टू भोपाल टू नाइट, बेस्ट ऑफ जर्नी, जब जर्नी वाला मामला हो तो उसमें ये आता है। सेकेंड, आई शैल कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो, आई शैल कंसल्ट द डॉक्टर टुमारो, इसका आ जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। थर्ड, आई एम गोइंग टू परफॉर्म ए डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट टुमारो, ऑल द बेस्ट। फोर्थ, आई हैव टू मेक ए स्पीच इन द असेंबली नेक्स्ट वीक, गुड लक। तो इसमें जैसे ऑल द बेस्ट है, गुड लक है, ये दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक हैं तो आपस में भी आ सकते हैं। फिफ्थ, वी आर लिविंग ऑन 12th May फॉर बद्रीनाथ पिलग्रिम्स, टेक केयर। सिक्स्थ, आई विल टेक माई मैथ्स एग्ज़ाम डे आफ्टर टुमारो, बेस्ट ऑफ लक। सेवन, द डॉक्टर विल कीप मी इन हॉस्पिटल फॉर ए वीक मोर, गेट वेल सोन। एट्थ, वी आर गोइंग टू माउंट आबू बाई टैक्सी, हैव ए सेफ जर्नी, safe, nice, pleasant. 8th, we are going to Mount Abu by taxi, have a safe journey. 9th, the result of IIT will be declared today, I am getting worried, I hope all goes well. 10th, I am getting my new shop inaugurated soon, may luck shine on you. B, you read in the link lesson what an astrophysicist is. Now look at the words given in the box describing various professions. Read the clues about each profession and write the name of the profession next to the clues. One has been done for you. एस्ट्रोफिजिक्स, भौतिक विज्ञान। स्पीकर, राइटर, स्कल्पचर, एक्टर, डेंटिस्ट, लीडर, म्यूजिशियन, कार्टूनिस्ट, सिंगर, आर्टिस्ट, कारपेंटर, कोबलर। Who are these people? Read the clues and choose their profession. Akhil performs on the stage. He sings and attracts the crowd. अखिल स्टेज पर परफॉर्म करता है, वह गाता है और भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो गाता है तो सिंगर। सेकंड, मीरा मेक्स ड्राइंग्स पेंटिंग्स, सी हैज़ हेल्ड मैनी एग्जीबिशन, कि जो मीरा है वो ड्राइंग पेंटिंग बनाती है और उसने बहुत सारी प्रदर्शनी भी लगाई हैं। तो ड्राइंग पेंटिंग बनाती हैं आर्टिस्ट। थर्ड, राम क्रिएट्स ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, तो क्या हो गया स्कल्पचर। फोर्थ, मोहन ड्राज फनी कार्टून्स फॉर द न्यूज़पेपर, कार्टून बनाता है तो कार्टूनिस्ट। फिफ्थ, रेनू हैड एक्टेड इन मैनी टीवी शोज एंड मूवीज, एक्टिंग करी है तो ये हो गई एक्टर, यानी कि एक्ट्रेस एक किस्म की कह सकते हो लेडी। सिक्स्थ, बबीता राइट्स पोइम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, शी हैज़ गोट देम पब्लिश्ड, राइटिंग का काम करती है तो राइटर। सेवंथ, परखर प्लेज द गिटार इन एन ऑर्केस्ट्रा, गिटार बजाता है तो म्यूजिशियन। ग्रामर, रिपोर्टेड स्पीच, रिवीजन कर रहे हैं हम इसका। When we report someone's speech, actual words spoken, certain grammatical changes are made. Let's revise the changes pertaining to tenses, pronouns and words showing place and time. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जैसे हम जिसकी जो की तो बात कही हो डायरेक्ट, और फिर उसको हम बदलाव करके कहते हैं उसकी बात को जो के तो शब्द न करके अर्थ वही होता है तो वो इनडायरेक्ट। तो जब वो इनडायरेक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, टेंस में भी चेंज आ जाता है, प्रोनाउंस में और बहुत सारी चीज़ों में आता है। तो उसके लिए यहाँ बता रखा है टेंसेज। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, फ्यूचर और प्रेजेंट में है तो नहीं, तो अंदर का चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंट सिंपल से सिंपल पास्ट कम का केम, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल इज़ कमिंग वाज कमिंग। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जैसे हैज़ कम हैड कम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे हैज़ बीन कमिंग हैड बीन कमिंग। सिंपल पास्ट
पास्ट परफेक्ट में। केम, हैड कम। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वाज कमिंग, हैड बीन कमिंग। विल सेल, वुड शुड में चेंज हो जाएंगे। मे कैन, माइट कुड में चेंज हो जाएंगे। प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई वी एंड देयर पोजेसिव एडजेक्टिव माई अवर इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, कहने का अर्थ है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे सी सैड, आई एम हैप्पी। यहाँ पर देखो सी सब्जेक्ट है तो अंदर जो आई है फर्स्ट पर्सन वो इसी के अनुसार चेंज हुआ, इसलिए सी सैड दैट सी वाज हैप्पी। सेकंड, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन यू एंड देयर पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूअर्स आर चेंज इनटू द सेम पर्सन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का आगे बताएंगे, वैसे कोई चेंज नहीं होता, ये बताएंगे। सेकंड पर्सन का जैसे एग्जांपल लिख दिया, आई सेड टू हर यू आर ऑन टाइम। आई सेड टू हर यू आर ऑन टाइम, तो आई टोल्ड हर दैट यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, उसी के अनुसार हो गया तो यू का सी हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट सी आर, क्योंकि टेंस बदला, सी वाज ऑन टाइम। थर्ड, प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन ही सी इट दे एंड देयर पोजेसिव एडजेक्टिव हिज हर इट देयर रिमेन अनचेंज। इनमें कोई चेंज नहीं आता, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता। वो जो लिखते हैं ना SON 1 2 3, एस सब्जेक्ट 1 फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। 2 सेकंड, सेकंड पर्सन O फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन N फॉर नो चेंज। फिर आगे देखो, सी सैड ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। सी सैड, फिर दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमास वगैरह सब हटा दिए। दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, खुद ही रहेगा। वर्ड शोइंग प्लेस टाइम, जो शब्द प्लेस और टाइम को दिखा रहे हैं वो कैसे चेंज होंगे ये बता रखा है। ये ध्यान देना है, प्लेस और टाइम को जो दिखा रहे हैं वो चेंज होंगे। अगर वो वर्ब के तौर पर है तो चेंज नहीं होगा, जैसे कम का गो तब नहीं बनेगा। नाउ, देन, दिस, दैट, क्योंकि फिर वो दूर हो गया बता रहे हैं, जैसे हम इनडायरेक्ट तौर पर बताते हैं इसलिए चेंज हो गया। दीज, दोज, सैड, टोल्ड, हेयर, देयर, दस, सो, कम, गो, टुडे, दैट डे में, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, एगो, बिफोर। ए, रूल्स फॉर क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड्स। रूल्स फॉर क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड से शुरू होते हैं उनके लिए क्या रूल है। फर्स्ट, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क, इंक्वायर ऑफ, डिमांड, एटसेट्रा। रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करते हैं तो वहाँ पर या तो आस्क लगाएंगे या इंक्वायर ऑफ या डिमांड, वो उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, चेंज द इंटरोगेटिव फॉर्म इनटू असर्टिव फॉर्म एंड रिमूव द क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। थर्ड, डोंट यूज दैट और एनी अदर कंजक्शन आफ्टर आस्क, इंक्वायर, एटसेट्रा। कि इसके अंदर जो जैसे दैट लगाते थे औरों में, जो WH वाले हैं उनमें हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे या किसी और दूसरे कंजक्शन का। फोर्थ, टेंसेज, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स शोइंग प्लेस टाइम आर चेंज एज पर रूल्स गिवन बिफोर। जो टेंस, प्रोनाउन, वर्ड्स हैं जो बाकी के रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग हो गए, जैसे टेंस बता रखे हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जो बता रखे हैं वैसे ही। एग्जाम्पल, सी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। सेड टू का आस्क्ड, सी आस्क्ड मी व्हाट यूअर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो यूअर का माई बन जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, he said to me
हाउ डिड यू गेट ऑल दिस मनी, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस मनी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अंदर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बता था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। सेड टू का आस्क्ड बन जाएगा। ही आस्क्ड मी हाउ, जैसे ये WH वाले हैं बता था दैट नहीं लगेगा। ही आस्क्ड मी हाउ यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो इसलिए यू का क्या हो जाएगा आई। ही आस्क्ड मी हाउ आई हैड गोट ऑल दैट मनी, जिसका दैट जैसे हमने देखा था जिसका दैट होना। सेकंड, दे सेड टू हर व्हाई हैव यू कम टू आवर हाउस। दे आस्क्ड हर व्हाई, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हर है, यू का क्या हो जाएगा सी। वाई सी हैड, टेंस चेंज हो गया, वाई सी हैड कम टू आवर का दियर हाउस, क्योंकि ये थर्ड पर्सन बन जाएगा ना आवर का, जैसे दियर टू दियर हाउस। थर्ड, आई सेड टू श्याम व्हाट डू यू हैव इन योर बैग। आई आस्क्ड श्याम व्हाट he had in his bag, what he had in his bag. Fourth, Meeta said to Geeta, where is my mother. Meeta asked Geeta where, my का हर हो जाएगा, where her mother was, where her mother was. Fifth, the thief said to him, when will you leave me. The thief asked him when, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हिम है तो यू का ही हो जाएगा। when he will का वुड हो जाएगा। when he would leave मी का him, when he would leave him. B, rules for questions beginning with helping verbs। पहले WH वाले थे, अब जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर, हैज हैव, जो इनसे शुरू होने वाले हैं उनके लिए क्या रूल है। फर्स्ट, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू आस्क, इंक्वायर ऑफ, डिमांड एटसेट्रा, ये तो जो WH में था सेम। सेकंड, चेंज द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ सेंटेंस इनटू असर्टिव फॉर्म, इसको भी हमने क्वेश्चन फॉर्म से असर्टिव में साधारण वाक्य में बदलना, जैसे WH वालों में बदला था। थर्ड, यूज इफ वेदर एज कंजक्शन, यहाँ पर हमने कंजक्शन लगाना है, जैसे उसमें WH वाले में कोई नहीं लगाते थे, इसमें लगाना है, लेकिन दैट नहीं लगेगा, इफ और वेदर में से एक लगेगा। फोर्थ, टेंसेज, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स शोइंग प्लेस ऑब्लिक टाइम आर चेंज एज पर रूल्स मेंशन्ड अर्लियर, ये जैसे उसमें WH वाले में तो वैसे इसमें ये सब में बराबर हैं, टेंस के रूल और प्रोनाउंस के रूल। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू नॉट अफ्रेड, ही आस्क्ड मी इफ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो यू का आई हो जाएगा, इफ़ आई आर का वाज हो जाएगा, इफ़ आई वाज नॉट अफ्रेड। फिर है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट, राम सेड टू सोहन डू यू नो दिस क्वेश्चन। राम आस्क्ड सोहन, इफ़ या वेदर में से एक लगाएंगे, इफ़ ईजी है तो इफ़ लगा लो, इफ़ यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सोवन थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर ये ही हो जाएगा। इफ़ ही, नो का न्यू हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, ही न्यू, दीज का दोज, दोज क्वेश्चन। सेकंड, मोनू सेड टू सोनू हैव दे वन द मैच। मोनू आस्क्ड सोनू इफ दे, हैव का ऐड हो जाएगा, इफ दे हैड वन द मैच। थर्ड, the teacher said to the boys have you been reading today or not. The teacher asked the boys if, you का दे हो जाएगा, if they had been reading, today का that day जैसे पहले आता था, that day or not. Fourth, my brother said to me are you going to join the medical course. My brother asked me if, you सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो आई हो जाएगा, इफ़ आई वाज गोइंग टू ज्वाइन द मेडिकल कोर्स। फिफ्थ, मिस्टर राम सेड टू अनिल वर यू एब्सेंट येस्टरडे। मिस्टर राम आस्क्ड अनिल इफ, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, अनिल थर्ड पर्सन है इसलिए यू का ही हो जाएगा, इफ़ ही वाज एब्सेंट येस्टरडे का बताया था पहले, द प्रीवियस डे। फिर डिक्शनरी प्रैक्टिस,
In this chapter you read about a claustrophobic person. फोबिया मीन्स फियर और हेटर्ड ऑफ समथिंग। फोबिया क्या होता है? किसी चीज़ से भय या अत्यधिक घृणा, वो फोबिया होता है। लुक अप ए डिक्शनरी एंड मैच द फॉलोइंग। जैसे आर्कनोफोबिया, जेनोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। आर्कनोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ियों से डर लगता हो, तो इसके साथ मैच हो जाएगा आर्कनोफोबिया के साथ फियर ऑफ स्पाइडर्स। जेनोफोबिया जो विदेशी लोग होते हैं उनसे जो भय लगता हो, घृणा करते हैं, वो आता है, तो जेनोफोबिया के साथ मैच हो जाएगा फियर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशियों से। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से भय। हाइड्रोफोबिया आमतौर पर जिनको रेबीज़ की बीमारी हो जाती है उनको होता है ये। स्पीकिंग एंड राइटिंग कंपोजिशन। मेहुल with his family went on holiday to Ranthambore National Park. He had a great time because he got to know a lot about a wildlife sanctuary, the natural habitats of wild animals, birds and plantation, etc. He wishes to share the experience of his trip with his cousin Rima. He includes the following information. Write the letter that he may write to his cousin. यानी कि एक रखा है कि जो एक जंगली जानवरों का स्वाभाविक स्थान होता है, अभयारण्य, जहाँ पर वे खुले घूम सकते हैं, उसके बारे में बताना हमने। वहाँ पर जैसे जंगली पशु हैं, पक्षी हैं और बहुत तरह के पौधे आदि चीज़ें भी हैं, और उसे अपनी जो चचेरे बहन है रीमा, उसको लिखना है उसने एक लेटर, और उसके लिए यहाँ पर हिंट दिए गए हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसकी सहायता से फिर हम लिख सकते हैं। क्या क्या हिंट दे रखे हैं? वेयर इज़ द नेशनल पार्क है, ये है ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। हाउ फार इज इट फ्रॉम मुंबई? 180 माइल्स फ्रॉम मुंबई। हाउ टू गेट देयर? बाई ट्रेन, 15 hours from Mumbai. What can one see? Trees, 300 different kinds and 50 aquatic plants. Animals and birds, 272 birds. 12 type of reptiles हैं, सरीसृप हैं। 30 mammals हैं, स्तनधारी जीव हैं जो अब बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। 30 to 40 leopards, तेंदुए हैं। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पैंथर्स, चीते हैं। व्हेन वाज द फोर्ट बिल्ट? किला कब बना था? बिल्ट इन द 10th century. हाउ इज इट यूज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए रेस्ट हाउस। अब इसको एक रेस्ट हाउस में बदल दिया गया, तो इनकी सहायता से हमें अब लेटर लिखेंगे। जब कुछ भी नहीं दे रखा हो, कोई पता दे रखा हो, एड्रेस दे रखा तो हम एड्रेस लिखेंगे। अगर एड्रेस नहीं दे रखा तो फिर हम एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे XYZ। डेट लिख देंगे, जो भी डेट है। डेट दे रखी हो तो ठीक है, नहीं तो जो करंट की डेट है वो लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल September 4 या 5, 2020। डियर रीमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन हेयर एंड आई होप द सेम फॉर यू। आई वेंट on a holiday to Ranthambore National Park, which is in eastern Rajasthan. It is 180 miles from Mumbai. We went there by train and it took us 15 hours. I saw lot of trees and animals there. There were 300 kinds of trees and 50 aquatic plants, 272 birds, 12 reptiles, 30 mammals and 30 to 40 leopards and a large number of panthers. हमने इसमें से लिया सारा। It was really fun and I advise you to visit there too. Pay my regards to your parents. Yours loving, ये अगली नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पर जगह नहीं थी मैंने इसलिए यहाँ लिखा है। फिर नेम, आपका जो भी नेम है। तो इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।